Hello everyone, how are you all doing? I hope you must be doing fine. Now, in today's video, we are going to learn about modal auxiliaries. Okay, we have already discussed modals in the first level, but in this video, we are going to learn in more detail. So, what are modals? Modals are a type of auxiliary verb, that is, helping verb that is used to express ability, possibility, permission और obligation. ठीक है, सो मॉडल्स एक ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जो एबिलिटी दिखाने के लिए यूज होते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन मांगने के लिए या ऑब्लिगेशन के लिए, मतलब ड्यूटी या कमिटमेंट के लिए. And these verbs provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. Okay, so these are the modal auxiliary verbs that are can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, used to, need to, dare to, have to. Okay, these are the modal auxiliary verbs. So modals provide the information about the possibility. Okay, it gives about permission, request or ability, suggestion or hypothetical advice. Okay, it can tell obligation or prohibition or the lack of necessity. Okay, now there are two kinds of auxiliaries. Okay, the primary and or the principal auxiliaries are to be, to have and to do. Okay, for example, is, am, are in the present tense, was, were in the past tense. In present, okay, for present tense we use has and have, and for past tense we use had. In present tense we use do or does, and in past tense we use did. Okay, so these are the primary or you can say principal auxiliaries. Now, how do we use modals? Okay, we use modals like subject plus modal and verb. For example, could play the piano. ठीक है, तो Mary is the subject, could is the modal and play is the verb. This is the structure of using the modals. Okay, and modals do not accept conjugation, मतलब कि variation. Okay, do not accept any kind of variation in the subject and verb. Okay, and they do not need other auxiliary verbs. So when we are using any modal verb, so there is no requirement to use any other auxiliary verb. So modal auxiliaries do not change with the number or person of the subject. Okay, we are not concerned with the number or the person of the subject. It will not change depending on the singular or plural of the subject. And we cannot use auxiliaries, modal auxiliaries. Now, form of modal verbs. So there is no s in singular. Okay, as we know earlier that we used to add an s to the verb when the subject is singular, but for the modal verbs we do not use s. For example, we say he can ski. Okay, so we cannot write he can ski or he can skis. Okay, this does not make a sense. Okay, this does not make a sense. So there is no s in the singular. Okay, and there is no don't and doesn't in the negative sentences. Okay, for example, the sentence they can't be serious, वो serious नहीं हो सकते हैं, तो we don't use it like they don't can be serious. Okay, we don't use the word don't or doesn't, we make the modal itself negative, they can't be serious.
Okay, so when we are using modal verbs, we do not use don't and doesn't. And there is no do or does in the question sentences. For example, we don't use do you would like to come with me? No, we do not use it like this. Rather, we use would you like to come with me? क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? Okay, so what is the rules? There is no s in singular. There is no don't and doesn't in the negative sentences. And there is no do or does in the question sentences, that is interrogation. And also verbs do not have ing forms, as we saw earlier that modals cannot be used in continuous forms, and continuous means ing forms. Okay, so we cannot use to, can or canning. Okay, we cannot use musting. Okay, we only use the modal, that is must and can. For example, she must study for strong obligation. Okay, matlab it's her duty that she must study. Okay, we would have gone the other way. Recommendation मतलब हम recommend कर रहे हैं, हम suggest कर रहे हैं कि हम दूसरे वे से जा सकते थे. ठीक है. He could play football in his youth. Could, what does it suggest? It suggests the ability in the past. मतलब वो जब young था तब वो फुटबॉल खेल सकता था. ठीक है, so that is talking about the ability in the past. And modal verbs do not have all the tenses, and they use other verbs to complete the tenses. When we are using can and we want it to use in the future tense, so we will replace can with be able to, and we will replace must with have to. Okay, or if we are using in past tense, then it will be converted into had to. Okay, let's see an example. They can play the piano. Okay, मतलब वो piano play कर सकते हैं. ठीक है, तो that is in the present tense. The sentence is in the present tense. Then if we have to make it in future tense, we will replace the can with will be able to. Okay, for future we use will, and for can we will use be able to. Okay, so the sentence will be like they will be able to play the piano in the future. मतलब वो फ्यूचर में पियानो प्ले कर पाएंगे. ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं. यू मस्ट कम अर्ली. ठीक है, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट टेंस का स्टेटमेंट है. ठीक है, एंड मस्ट के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं? हैव टू. बट अगर हमें उसे पास्ट में चेंज करना है तो हम उसको हैड टू में चेंज कर देंगे. सो यू हैड टू कम अर्ली येस्टरडे, मतलब तुमको कल जल्दी आना था बट तुम नहीं आए. Okay, so when the modal verbs they have to be converted into any other tense, then they use different verbs to complete the requested tense. Now what does the modal express? Okay, they express ability, advice, certainty or intention, necessity, obligation, permission, willingness, habit or wish. These are the things that the modal express. So which particular model we can use to express these things? When you have to express ability, you can use can or could. When you have to give an advice, you can use these models: had, better, ought to or should. When you want to show certainty, you will use shall, will or would. Okay, similarly for necessity, you will use need to or must. Okay, so you can see different possibilities, and
For the particular thing, you can use different models. Okay. To express wish, you can use may. Now we will start with shall and will. So shall is a modal auxiliary verb mostly used in the case of first person. Means अगर subject first person में है तो हम shall use करेंगे. Okay. And will is also a modal auxiliary verb that can be used in different ways. But will एक ऐसा मॉडल है जो हम उसको अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं. Shall denote simple plus active time in first person. Okay. For example, I shall go, I shall help her. Okay. These are the active time of shall. Okay. And shall is also used in the second and third person to express promise, command, threat and determination. ठीक है. shall अगर हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के में यूज कर रहे हैं तो वो प्रॉमिस दिखा सकता है, कमांड दे सकता है, थ्रेटनिंग दे सकता है या तो डिटर्मिनेशन बताता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यू शैल रिसीव अ प्राइज, तुमको एक प्राइज मिलना चाहिए. ठीक है. और मिलेगा, तो ये हो गया प्रॉमिस. ओके. ही शैल गो देयर, उसको वहां जाना चाहिए, तो वो कमांड. शी शैल बी फाइंड फॉर लाइंग, मतलब उसने झूठ बोला है तो उसको फाइन भरना पड़ेगा, तो ये थ्रेट हो गया. ओके. दे शैल ओबे अस वेदर दे लाइक इट और नॉट, तो ये डिटर्मिनेशन हो गया कि उनको हमारी बात माननी ही पड़ेगी चाहे उनको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे. ठीक है. तो दिस आर द यूजेस ऑफ शैल. नाउ यू विल सी uses of will. So it is used in second and third person to express simple future tense. ठीक है. will is basically used in simple future tense. Okay, for second and third person. For example, he will go there, वो वहां जाएगा. They will help her, वो लोग उसकी मदद करेंगे. Will he come today, क्या वो आज आएगा. ठीक है. So this is the usage for second and third person. Now when we are using will in the first person, okay, so what it will express? It will express willingness, promise, threat, command and determination. ठीक है. For example, I will do it, मैं ये काम करूंगा, तो वो क्या है? एक strong determination हुआ. okay. I will expose her, मतलब मैं उसकी पोल सबको बता दूंगा, तो वो क्या हो गया? थ्रेट हो गया. ठीक है. आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो ये क्या हो गया? प्रॉमिस हो गया. ठीक है. एंड आई विल लैंड यू माई पेन, मतलब मैं अपनी पेन तुमको दूंगा, तो ये विलिंगनेस है, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी पेन तुमको दूं. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी यूज विल. Now we will see about must and have to. So must is used to express personal obligation. Okay, means personal duty or personal commitment. And it expresses what the speaker thinks is necessary. इसमें स्पीकर को जो नेसेसरी लगता है वो बताते हैं. और ये सब्जेक्टिव ऑब्लिगेशन भी हो सकता है, मतलब कि वो सब्जेक्ट को कुछ ड्यूटी दे सकते हैं कि जो स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है उसको भी वो एक ड्यूटी दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुमको हार्ड वर्क करना चाहिए. ओके. ऑल पैसेंजर्स मस्ट वेयर सीट बेल्ट्स. ठीक है. तो सारे पैसेंजर्स को कंपल्सरी सीट बेल्ट्स पहननी है. ठीक है. तो ये क्या हो गया? एक स्ट्रॉन्ग ड्यूटी हो गया. ओके. नाउ what does have to express? It express impersonal obligation. ठीक है. impersonal मतलब अगर आप इनफॉर्मल वे में या अगर आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से जब बात कर रहे हैं तब आप have to का यूज कर सकते हैं.
द सब्जेक्ट इज obliged or forced to act by a separate or external power. ठीक है. expresses objective obligation. तो वो ऑब्जेक्टिव ड्यूटी बताता है, जबकि मस्ट जो है वो सब्जेक्टिव ड्यूटी बताता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू लीव अर्ली टुडे. मुझे आज जल्दी जाना है. यू विल हैव टू पे फॉर द एक्सेस. मतलब आपने एक्सेस कुछ काम किया, सॉरी, आपने एक्सेस कुछ मंगवाया तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. अब मस्ट एंड हैड टू क्या दिखाते हैं? वो दिखाते हैं नेसेसिटी या तो फिर कंपल्शन. ओके. हैव टू क्या बताता है? हैव टू सजेस्ट सम एक्सटर्नल कंपल्शन. और मस्ट क्या बताता है? वो स्पीकर की पर्सनल फीलिंग्स बताते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क बाय द इवनिंग. ओके, सो इट इज अ नेसेसिटी. आई हैव टू कंप्लीट मतलब मुझे शाम तक ये काम खत्म करना ही है. ओके. यू मस्ट सी द न्यू मॉल, इट इज ब्यूटिफुल. ठीक है, तो ये पर्सनल की फीलिंग्स बता रहे हैं कि आपको नया मॉल देखना चाहिए, वो बहुत ही खूबसूरत है. ठीक है. एंड मस्ट डज नॉट हैव अ पास्ट टेंस. हम मस्ट को पास्ट टेंस में यूज नहीं कर सकते, बट जो हैव टू है वो हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों में यूज कर सकते हैं. ठीक है. जैसे कि आई हैव टू फिनिश द एक्सरसाइज, मतलब मुझे ये एक्सरसाइज फिनिश करनी है. तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया. ठीक है. आई हैड टू फिनिश द एक्सरसाइज मतलब मुझे ये एक्सरसाइज फिनिश करनी थी. हैड टू मतलब पास्ट टेंस. Okay, it becomes past tense and this is present tense. Okay, so for present tense we use have to, and for past tense we use had to. And what we will use in future tense? That I will have to finish the exercise. मतलब मुझे ये एक्सरसाइज फिनिश करनी पड़ेगी. ठीक है. इसमें मुझे ये एक्सरसाइज फिनिश करनी है. पास्ट टेंस में मुझे एक्सरसाइज फिनिश करनी थी, और फ्यूचर में मुझे ये एक्सरसाइज फिनिश करनी पड़ेगी. ठीक है. सो दिस इज फ्यूचर टेंस. नाउ शुड एंड ऑट टू. तो व्हाट डज दिस एक्सप्रेस? दिस एक्सप्रेस ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और एडवाइस. ठीक है. तो यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स. ठीक है, मतलब ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने पेरेंट्स की बात माने. ओके. यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू रिड्यूस वेट. आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको अगर वेट लूज करना है तो ये क्या हो गया? एक एडवाइस हो गई. ओके. यू शुड हेल्प पुअर फ्रेंड मतलब ये क्या है? एक ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि आपको अपने गरीब दोस्त की मदद करनी चाहिए. ओके. Then ought to can also be used to express a moral duty. Okay, moral duty मतलब कि सोसाइटी की तरफ जो आपकी ड्यूटी है वो. फॉर एग्जाम्पल, यू ought to follow the traffic rules. आपको कंपल्सरी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने ही चाहिए. ओके. अब ये जो शुड है ना, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जैसे कि मस्ट एंड हैव टू है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ यू हैव टू पार्क योर कार इन द प्रॉपर पार्किंग लॉट, तो यहाँ पे क्या मॉडल यूज कर रहे हैं हम? हैव टू. ठीक है. तो ये सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि ये एक लॉ है कि आप अपनी कार पार्किंग में पार्क करें और ऐसा होना ही चाहिए. ठीक है. अगर यही सेंटेंस मैं मस्ट को लेकर यूज करूं, ठीक है, कि यू मस्ट पार्क योर कार इन द प्रॉपर पार्किंग लॉट, मतलब ये जरूरी भी है
और मैं ऐसा एडवाइस भी करूंगा कि आप उसको सही से पार्किंग लॉट में पार्क करें, ठीक है। बट अगर सेम चीज मैं शुड लेकर बोलती हूँ कि यू शुड पार्क योर कार इन द प्रॉपर पार्किंग लॉट, मतलब ये सही तरीका है करने का, इसमें कुछ नेसेसिटी नहीं दिख रही है, इसमें कुछ लॉ की बात नहीं आ रही है, जबकि हैव टू लॉ दिखाता है और वो करना ही है हमें, मस्ट हमें नेसेसिटी दिखाता है और एडवाइस भी देता है कि आपको ऐसा करना ही चाहिए, और शुड क्या दिखा रहे कि आपको ये चीज करनी है, अगर नहीं भी करते हैं तो इट डजेंट मैटर मच। सो शुड इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज मस्ट एंड हैव टू। अभी अगर हमें रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करनी है, हमें किसी को रिक्वेस्ट करना है, तो हम ये सारे मॉडल्स यूज कर सकते हैं, कैन, कुड, विल, वुड एंड मे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कुड आई यूज योर टेलीफोन प्लीज, क्या मैं आपका टेलीफोन यूज कर सकता हूँ, ठीक है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या हम आपका टेलीफोन यूज कर सकते हैं। कैन आई ओपन द डोर नाउ, क्या मैं अभी दरवाजा खोल सकता हूँ, ये भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ओके। वुड यू हेल्प हिम प्लीज, क्या तुम उनकी मदद करोगे, विल यू हेल्प हिम, ये भी वही है कि क्या तुम उनकी मदद करोगे। और मे आई कम इन, ये भी एक रिक्वेस्ट है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। बट मे जो है वो हम अलग तरीके से भी यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि ये सबसे पोलाइज्ड फॉर्म है रिक्वेस्ट करने का या परमिशन मांगने का, ठीक है। जैसे कि मे आई कम इन सर, सो इट इज द पोलाइटेस्ट फॉर्म, सबसे पोलाइट फॉर्म है, ठीक है। और मे यूज होता है विश दिखाने के लिए भी, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस अ विश देन वी कैन यूज मे, ठीक है। और जब मे एक विश बता रहा है तो हमें क्या करना है, हमें एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, आई विश कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, ठीक है। सो मे इज यूज टू मेक रिक्वेस्ट, टू आस्क परमिशंस एंड टू एक्सप्रेस अ विश। नाउ we use models as questions, okay. So when we are using models as question, the answer will be either yes or no, okay. For example, can I come with you to the movie, क्या मैं तुम्हारे साथ मूवी पे चल सकता हूँ, तो आंसर में क्या होगा, इधर yes और no, ठीक है। या तो तुम चल सकते हो या तो तुम नहीं चल सकते हो, तो इसका आंसर yes या no में ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैडम, तो आंसर क्या होगा, इधर यस हाँ तुम आ सकते हो, या तो फिर नो कि नहीं तुम नहीं आ सकते हो, ठीक है। सिमिलरली, कुड मीरा लुक आफ्टर द क्लास इन माई एब्सेंस, क्या मीरा क्लास पे ध्यान रखेगी जब मैं क्लास में नहीं हूँ, तो इधर रखेगी या तो नहीं रखेगी, तो आंसर विल बी ईदर यस और नो, ओके। वुड यू लाइक टू रीड अ स्टोरी बुक, क्या तुम स्टोरी बुक पढ़ना चाहोगे, ओके। तो हाँ पढ़ना चाहोगे या तो फिर नहीं नहीं पढ़ना चाहोगे, ठीक है। शुड वी गो आउट एंड प्ले इन दिस वेदर, क्या हम बाहर जाएं और ये वेदर में हम लोग खेल सकते हैं, तो या तो जा सकते हैं या तो नहीं जा सकते हैं। सो मॉडल्स जब हम क्वेश्चंस की तरीके से यूज करते हैं तो उनका आंसर या तो यस होगा या तो फिर नो होगा, ओके। अब मॉडल्स के पॉजिटिव फॉर्म भी होते हैं और नेगेटिव फॉर्म भी होते हैं, जैसे अगर कैन है तो उसका कैन नॉट हो जाएगा और उसका शॉर्ट फॉर्म कांट हो जाएगा, ठीक है। कुड का कुड नॉट और कुडंट, ओके। मे का मे नॉट, माइट का माइट नॉट,
ओके, इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म नहीं हो सकता। ओके, शैल का शैल नॉट और शैलेंट, शुड का शुड नॉट और शुडंट, विल का विल नॉट और वोंट। ठीक है, सिमिलरली फॉर अदर मॉडल्स ऑल्सो। ठीक है, वी कैन हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ मॉडल्स। अब मॉडल ऑक्सिलियरीज। ठीक है, हमने जो अभी तक पढ़ा वो वापस से एक बार देख लेते हैं कि कैन क्या बताता है। ठीक है, एबल टू मतलब कि एबिलिटी दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन राइड अ हॉर्स, तो ये एबिलिटी हुई कि मैं घोड़ा चला सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है कुड। कुड क्या बताता है? पॉसिबल, पॉसिबिलिटी बताता है वो। ठीक है, तो इट कुड स्नो टुमारो मतलब इट इज पॉसिबल कि कल बर्फ गिर सकती है। ठीक है, मे क्या एक्सप्रेस करता है? परमिशन। ठीक है, मे आई हैव अ कपकेक, क्या मैं कपकेक खा सकता हूँ, या तो क्या मुझे कपकेक मिलेगा। ओके, तो वो परमिशंस मांगता है। माइट, इट इज पॉसिबल। ठीक है, माइट क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी। तो आई माइट गो शॉपिंग टुडे, शायद इट इज पॉसिबल कि आज मैं शॉपिंग पे जाऊं। ठीक है, शुड, व्हाट डज शुड सजेस्ट? इट सजेस्ट एन एक्शन। ठीक है, यू शुड वेयर अ जैकेट, तुमको एक जैकेट पहनना चाहिए। ओके, मस्ट मीन्स यू हैव टू, कंपल्सरी। एग्जाम्पल, आई मस्ट बकल माई सीट बेल्ट, मुझे अपनी सीट बेल्ट बंद करनी चाहिए। ठीक है, वुड, वो क्या बताता है? विलिंगनेस, कि आई वुड राइड द रोलर कोस्टर, मुझे रोलर कोस्टर पे राइड करना है। ठीक है, सिमिलरली you can look at this chart for the modal verb and the possibilities that they provide. Okay, for example, can express ability, doubt, astonishment, permission, or a polite request. May, it can be used to express permission, if not prohibition then supposition with the doubt. ठीक है, सिमिलरली मस्ट, वो क्या दिखाता है? ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, कंक्लूजन या प्रोबेबिलिटी। ओके, सिमिलरली you can go through all the modal verbs, what they express. Okay, you can refer to it properly, nicely. So this is it for modal verbs, and you can refer to the notes also that are provided. Thank you for today.